GSTR 1. So it is a details of outward supplies. Section 37 read with Rule 59 of CGST Act. So all outward supplies of goods or services or both, you have to provide details of all those things into this, and it is filled by every registered person, casual taxable person. GSTR 1 can be filed, and ISD, NRDP, composition dealer under section 10, person deducting tax at source under section 51, person collecting tax at source under section 52, ECO, supplier of OIDAR, online information database access and retrieval services, ये लोग ऐसे हैं कि जिनको ये GSTR 1 फाइल नहीं करना है. GSTR 1 नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल. तो किसको फाइल करना है एंड किसको फाइल नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है. GSTR 1 is filed by every registered person, casual taxable person, but it is not to be filed by ISD, NRDP, composition dealer under section 10, person deducting tax at source under section 51 TDS, person collecting tax at source under section 52 ECO, supplier of OIDAR services. GSTR 1 not required. What is the form of submission of details of outward supply? The details of outward supplies are required to be furnished electronically in form GSTR 1 for the month or quarter. ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या मंथ है या क्वार्टर है. अगर मंथली है तो मंथली फाइल करना है, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली जाना है उसको. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. Such details can be furnished through a common portal, either directly or from a facilitation center notified by the commissioner. तो ये डायरेक्टली भी हो सकता है और आपने जो कमिश्नर ने नोटिफाई किया है सेंटर, उसके थ्रू भी जा सकते हो. And nil GSTR 1 can be filed through an SMS only. Just you have to put one SMS and you can file nil GSTR 1 using a registered mobile number of the taxpayer. Now, next question comes to the mind. What is the due date of submission of GSTR 1? Monthly filing of GSTR 1. GSTR 1 for a particular month is filed on or before 10th. Because I had already told you, देखो मैंने एक टेबल बताया वहां पे 11th लिखा था, but in law it is 10th written, but right now government is made it 11th day of the immediately preceding the month. In other words, GSTR 1 of a month can be filed anytime between 1st and 10th day of the succeeding month. It may be noted that GSTR 1 cannot be filed during the period of from 11th day to 15th day of the month succeeding the tax next period. यहाँ पे टैक्स नहीं, नेक्स्ट पीरियड होना चाहिए वो. With effect from 1st January 2021, the time limit for furnishing the details of outward supplies in the form of GSTR 1 has been extended in the following manner. Already I told you, लॉ में 10th लिखा था, बट 1st January 2021 से ये डेट में चेंज आया है. एंड वो चेंज क्या है वो आपको ध्यान में रखना है. Class of registered person, time limit for furnishing the details of outward supplies in the form GSTR 1 for each quarter or tax period. रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम. अब ये एक नया स्कीम है जो हमें आज फोकस में करना है कि अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड है और वो QRMP स्कीम में जा रहा है. QRMP स्कीम इज ए ऑप्शनल स्कीम, इट इज नॉट कंपलसरी. तो उसको अपना GSTR 1 13th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड उसको फाइल कर देना है. और अदर्स केस में, अगर नॉर्मल केस में QRMP स्कीम में नहीं जा रहा है तो वो उसको 11th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच टैक्स पीरियड. These are the 4 quarters. Now, for this quarter, April, May and June quarter, he can file the return up to 13th of July. यानी 13th जुलाई तक वो फाइल कर सकता है. देन जुलाई, अगस्त, सितंबर के लिए 13th of October तक उसको फाइल कर देना है QRMP स्कीम में रिटर्न. GSTR 1 का डिटेल प्रोवाइड कर देना है. देन हियर 13th of January and here 13th of April. अप्रैल तक उसको फाइल कर देना है. ये एक स्कीम है जो उसको ध्यान में रखना है. नाउ
तो यहाँ पे नॉर्मल स्कीम है उसका। तो व्हाट आर द ड्यू डेट्स फॉर इट? तो यहाँ पे तो हर एक मंथ का होता है। जैसे अप्रैल के लिए व्हाट इज द ड्यू डेट? 11th ऑफ मे। 11th ऑफ मे तक उसको डेट फाइल कर देना है, GSTR 1 का पूरा डिटेल। और अगर मे है तो देन 11th ऑफ जून तक उसको डिटेल फाइल कर देना है। जून है तो 11th ऑफ जुलाई, एंड जुलाई है तो 11th ऑफ अगस्त। व्हाट आर द बेसिक कंटेंट्स ऑफ GSTR 1? सो क्या क्या आपको लिखना है यहाँ पे? सबसे पहले बेसिक एंड अदर डिटेल्स में GSTR नंबर लिखना है। वो आपको प्रैक्टिकली क्या क्या भरना होता है, तो GSTR नंबर, फिर उसका लीगल नेम क्या है, ट्रेड नेम इफ एनी है, लीगल नेम से अलग है तो, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर बिकॉज इट विल डिसाइड योर whether you QRMP scheme is available or not। ईयर एंड मंथ लिखना है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आपको सारा डिटेल HSN वाइज देना है। HSN मींस हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इश्यू किया है उसका डिटेल प्रोवाइड करना है। बेसिक एंड अदर डिटेल्स है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में B2B इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर्स। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। One dealer is registered, the person who is to whom you are selling is also registered, so for them you have to issue it is called B2B supply, and you have to provide details of all B2B supply including UIN holders, जिसके पास UIN नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके लिए भी आपको ये सप्लाई डिटेल प्रोवाइड करना है। B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर कस्टमर or business to unregistered person. Interstate supplies where invoice value is greater than 2.5 lakh। अभी आपको ये बाद में पता चलेगा कैसे इनवॉइस डिटेल अपलोड करना है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो कैसे करना है अपलोड इनवॉइस, 2.5 लाख से कम है तो इनवॉइस कैसे अपलोड करना है, वो सारी बातें आपको पता चलेगी। कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ अदर B2C सप्लाई, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो सारा डिटेल आपको कंसोलिडेटेड करके प्रोवाइड करना है, पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करना है। जीरो रेटेड सप्लाई, दैट मींस अगर आप नील सेल्स यूनिट को या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को सेल करते हो तो वो जीरो रेटेड लगता है। डीम्ड एक्सपोर्ट कितना है वो सारा आपको लिखना है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू किया है आपने तो वो डिटेल प्रोवाइड करना है। नील रेटेड, एग्जाम्टेड एंड नॉन जीएसटी, जिसपे जीएसटी ही नहीं लगता, जो जीएसटी में आए ही नहीं अभी तक, वो डिटेल्स प्रोवाइड करना है। अमेंडमेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड, अगर कुछ प्रायर पीरियड में अमेंडमेंट्स किया है यानी कुछ चेंज किया है तो वो भी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एडवांस रिसीव्ड, एडवांस एडजस्टेड, कोई एडवांस मिला है, जैसे आपने सेल किया नहीं था बट फिर भी अमाउंट मिल गया है तो आपने उसको जीएसटी भरना पड़ेगा, बट नेक्स्ट मंथ में वो सेल हो जाता है तो फिर वो एडवांस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स GSTR 1 में अलग अलग टेबल में इंसर्ट करनी पड़ती है। और जैसे जैसे टेबल्स, जरूरी नहीं है सारा टेबल में आपको डिटेल एंटर करने की जरूरत पड़े, बहुत सारे टेबल्स खाली भी रह जाते हैं क्योंकि सारा डिटेल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी डिटेल में वो आएगा ही। जितना आपके लिए एप्लीकेबल है वो सारा टेबल फिलअप कर रहा है, बाकी को ऐसे ही रहने देना है। नाउ अपलोडिंग ऑफ इनवॉइसेस, हाउ टू अपलोड द इनवॉइस and in which way they are to be uploaded, that we are going to discuss in this slide. There are two types of transaction. First is B2B. What is B2B? B2B means business to business. That means one registered person is supplying goods or services or both to another registered person. That means those type of transactions are called B2B transactions. If it is B2B transaction, if transactions are of a nature of B2B, then it may be interstate transaction, it may be intrastate transaction. Interstate means between states, intrastate means within the state. For both the type of transactions, invoice wise details to be uploaded. That means supplier has to upload each and every invoices in GSTR 1. Say for example, if there are 100 invoices, then he has to upload all the details of 100 invoices. But if it is B2C transaction,
Now, what is B2C transaction? B2C transaction means one registered person is supplying either to unregistered person or consumer. Then those transactions are called B2C transaction. In that also, there are two categories. First one, interstate transactions. In interstate, again, it is classified into two types. First one, invoice, which value of which is greater than rupees 2.5 lakhs. अगर उसका वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, इनवॉइस का वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है, तो उसका डिटेल इनवॉइस वाइज आपको इंसर्ट करना है. बट अगर इनवॉइस वैल्यू अप टू 2.5 lakh है, that means invoice value is less than or equal to 2.5 lakh, then in that case what he can do, he can insert consolidated details for each rate of tax for each state, state wise summary. यानी यहाँ पे इसको दो बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, each rate of tax and for each state उसको कंसोलिडेटेड डिटेल्स इंसर्ट करनी पड़ेगी. इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं हम, and invoice value is less than or equal to 2.5 lakh. Then there are two states, say for example Gujarat and Maharashtra. So now 5%, 12%, 18%, three rates are given, and invoice value is 10,000, 20,000, and 30,000. So in this case, he has to upload all the details in consolidated details, but tax wise. Say for example, one more 5% is there. So and here 15,000 is there. So in 5%, how much he will write down? 25,000. In 12%, he will write down 20,000. And 18%, he will write down 30,000. So single state, just he has to select one state, and automatically it will be selected when you select your GSTN number, and different table of different rate is available. So all the details of different tax rate you have to fill in different column. So in one stock you have to upload all the details, consolidated details. That means total. In Maharashtra also 5%, 5%, 12%, 12%. These four sales supplies are made. Your value is 25,000. Here value is 25,000. Here 35,000, and here 30,000. So in this case, in Maharashtra, so first of all he will select the state, and in state, then when he select the state, then when he enter the GST number, automatically state will be selected, and then in 5% he will write down 50,000 because invoice value is not more than 2.5 lakh, and in 12% he will write down 65,000. In each of this case, invoice value is less than 2.5 lakh, so that is why consolidated details state wise he has to upload. और ये इंट्रा स्टेट हुआ, यानी विद इन द स्टेट हुआ, तो फिर इनवॉइस का वैल्यू कुछ भी हो, आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स आपको डालना है. अलग अलग टैक्स रेट के लिए, जैसे 18% है तो 18% में जितना भी सप्लाई हुआ है वो इंसर्ट करना है, 28% है तो उसमें जितना भी सप्लाई हुआ है वो इंसर्ट करना है. बट इट शुड बी कंसोलिडेटेड वे. इन ए कंसोलिडेटेड वे मीन्स टोटल करो सारे वैल्यू का और फिर उसको एक ही कॉलम में इंसर्ट कर दो. 5%, 12%, again 5%, 12%. So here it is 2 lakh, here 3 lakh, here 5 lakh, here 6 lakh. So he has to enter all the details. He will select, he will write down GSTN number, and then GSTN number automatically state will come, and in 5% he will write down 7 lakh, and CGST, SGST automatically will be calculated. वो आपको लिखना है. Then in 12% he will write down
3 plus 6, 9 lakh. So this way you have to upload the details in your portal. Description of each items in the invoice will not be uploaded. Only HSN code in respect of the supply of goods and accounting code in respect of supplying of services will have to be paid. इनवॉइस में पूरी डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है, पूरा इनवॉइस भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एचएसएन कोड एंटर करना है या फिर उसका सर्विस है तो अकाउंटिंग कोड एंटर करना है कि अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ या उससे कम है तो आपको बी टू बी सप्लाई है तो 4 डिजिट लिखना है, बी टू सी सप्लाई है तो 4 डिजिट ऑप्शनल है। एंड इफ टर्नओवर एनुअल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो इन बोथ द केस वेदर इट इज बी टू बी सप्लाई और बी टू सी सप्लाई 6 digit of HSN code is to be written. Invoices can be uploaded anytime during the tax period and not just at the time of filing GSTR1. अब याद रखो इनवॉइसेस कभी भी आप अपलोड कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है आज बैठे एंड डेट है तो आप अपलोड कर। इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड एनी टाइम बट रिटन GSTR1 कैन बी फाइल्ड आफ्टर द मंथ इज ओवर फ्रॉम अप टू 11th or 13th. Invoices can be modified or deleted any number of times till submission of GSTR1 of a tax period. जब तक आपने GSTR1 फाइल नहीं किया वो मंथ का या क्वार्टर का, तब तक आप उसमें कितना भी मॉडिफिकेशन, कितना भी एडिशन, डिलीट कर सकते हो, बट वंस इट इज सबमिटेड यू कैन नॉट चेंज इट, यू कैन नॉट रिवाइज इट। तो जब भी आप फिलअप करते हो GSTR1 तो उस पर बहुत ध्यान से आपको फिलअप करना है क्योंकि रिवीजन का या रिवाइज करने का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। Uploaded invoice details are in a draft version till GSTR1 is submitted and can be hanged. यानी जितना भी इनवॉइसेस है आप जब तक GSTR1 फाइल नहीं किया है तब तक वो ड्राफ्ट मोड में है। दैट मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है, स्कैन कॉपीज ऑफ इनवॉइस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, ओनली सर्टेन प्रिस्क्राइब फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइसेस नीड्स टू बी अपलोडेड। फॉर एग्जांपल उसका जीएसटी नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, डेट क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, रेट क्या है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, एक्सेट्रा। मान लो कि 1000 इनवॉइसेस है तो आपको 1000 इनवॉइस का स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करना है। 1000 इनवॉइस का सिर्फ ये सारी बातें आप लिखोगे तो अपने आप डिटेल आ जाएगा। क्या डीलर का नाम है, क्या टैक्सेबल वैल्यू है, वही एंटर करना है, स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं रहती। Now amendment table, that means particular furnished in GSTR1 of the prior period can be amended by way of amendment tables given in GSTR1 of subsequent period. मीन्स मान लो कि कई गलती से आपने GSTR1 में ज्यादा टैक्स भर दिया या कम टैक्स भर दिया तो उसके लिए अमेंडमेंट टेबल है जो नेक्स्ट पीरियड में, जैसे आपने कोई गलती किया, लेट अस एक्सप्लेन। अब जनवरी का रिटर्न है वो आप 11 फरवरी तक फिलअप करोगे बाय 11 फेब। नाउ बट आपको पता चला कि आपने 5000 जीएसटी कम भरा या ज्यादा भरा, तब इसको आप कहां पे भरोगे? जब आप नेक्स्ट मंथ का यानी फेब का जब रिटर्न फाइल कर रहे हो या अप्रैल में, जब भी आपको पता चलता है आपने फरवरी का रिटर्न फाइल किया मार्च में, 11 मार्च में, तब आप अमेंडमेंट टेबल में उसका वो डिटेल एंटर करके ये 5000 आप एडजस्ट कर सकते हो। अमाउंट आपने जो भी मिस्टेक किया है जितना भी है वो आप अमेंडमेंट टेबल के थ्रू बता सकते हो। जनवरी का जो रिटर्न है GSTR1 आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अमेंड कर सकते हो डिटेल्स को, बट वो जो फाइल हो चुका है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। Now errors. If supplier discovers any errors or omission, he shall rectify the same in the tax period during which such error or omission is noticed and pay tax and interest. In case of short payment in the return to be furnished for such tax period. That means अगर कोई error rectify होता है या पता चलता है तो उसको जो टैक्स पीरियड में पता चलता है वो उसमें इंटरेस्ट के साथ वो उसको पेमेंट कर सकता है। Communication to recipient. Details of outward supplies for a month furnished by supplier are communicated and made available electronically, auto-populated to respective recipient in Part A of Form GSTR 2A and Form GSTR 4A in case of composition dealer, notification number 2/19 through the common portal after 10th day of succeeding month, due date of filing GSTR 1.
यानी आप जितना भी आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे फिलअप करोगे वो सारा डिटेल्स रेसिपिएंट को भी तो मिलना चाहिए। तो रेसिपिएंट को कैसे मिलेगा, क्योंकि रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है। और अगर बी टू बी सप्लाई होगा, बी टू बी, तो रेसिपिएंट ऐसा है कि जिसको क्रेडिट चाहिए, तो रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा, जब उसके 2A में वो रिफ्लेक्ट करेगा या उसके जीएसटीआर 4A में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जब मान लो कि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है 50,000, दैट मीन्स नाउ ही कैन टेक क्रेडिट ऑफ 50,000। GSTR 1 needs to be filed even if there is a no business activity, nil return in tax period। आपको मैंने ये बाद में भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं है, जीरो एक्टिविटी है, देन ऑल्सो इट इज टू बी फाइल्ड। टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर वॉलेंटरी कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीएन विल हैव टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर एक्टिव पीरियड। यानी कोई अगर कैंसिलेशन का अप्लाई कर रहा है, तो अब उसको जितना एक्टिव पीरियड है उतना एक्टिव पीरियड के लिए भी जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अप्रैल में एक्टिव था और मई में अब बंद कर रहा है बिजनेस, तो अप्रैल के लिए उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। In case where a taxpayer has been converted from a normal taxpayer to composition taxpayer, GSTR 1 will be available for filing only for the period during which taxpayer was registered as a normal taxpayer. GSTR 1 for said period, even if filed with delayed, would accept invoices for the period prior to the conversion. एक कंपोजिशन स्कीम में अगर पर्सन जा रहा है, तो उसको जीएसटीआर 1 कब तक भर सकता है? तो एक सिंपल बात, जब तक वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाता, वहां तक वो भर सकता है जीएसटीआर 1। जैसे मान लो कि वो कंपोजिशन स्कीम में जुलाई में चला गया, तो अप्रैल, मई एंड जून, ये 3 महीने हैं, वहां पे वो जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है। उसके बाद वो रिलैक्सेशन मिलती है, जीएसटीआर 4 में चला जाएगा। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए जीएसटीआर 4 है, उसके लिए फिर उसको वो भरना पड़ेगा। Like, share, and subscribe my YouTube channel for more videos like this.